جو نظام بنایا ہے وہ اللہ ہے، اس کے نظام میں بڑی وسعت ہے، وہ اللہ ہے، اس کے نظام میں بڑی وسعت ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہو اور موت سے پہلے اگر اس کے سمجھ میں آ جائے اور توبہ کر لے، ساری زندگی کا گناہ اللہ معاف کر دیں گے نہیں کر دیں گے؟ ارے کر دیں گے نہیں کر دیں گے؟ اللہ کے نظام میں ہے وسعت نہیں ہے۔ یہ جو بچہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد وجود میں آتا ہے، اس کو اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو اللہ نے بڑا محفوظ نظام بنایا ہے۔ ملنے سے بچہ نہیں آتا ہے، اگر ملنے سے بچہ آتا تو کوئی لاولد کیوں ہوتا؟ کوئی لاولد کیوں ہوتا؟ ہماری مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر یہ بتلا دیا، سمجھا دیا، دیکھو ہم میاں بیوی کے ملنے کے بھی پابند نہیں ہیں۔ اب تو یہ یوں بھی کہتے تھے کہ پھر اللہ ایسے ہی بچہ کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ تو اللہ تو ایسے ہی بچہ دیتے ہیں۔ سور کے بچوں تمہارے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کسی کا کیا قصور ہے؟ اللہ تو ایسے ہی دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے نظام بنایا بچے دینے کا، تو کسی کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیا، اور کسی کو بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیے، تو کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دی، تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تم اگر قدرت کی نگاہ سے دیکھتے، ہدایت کی نگاہ سے دیکھتے تو یہ جملہ نہ کہتے کہ یہ اللہ کے ساتھ بھی شریک کر دیتے ہیں سبب کو۔ انبیاء کے ساتھ سبب کو یہ شریک کر دیں، اولیاء کے ساتھ سبب کو یہ شریک کر دیں۔ عمل اور سبب بھی نہیں جانتے ہیں، عمل اور سبب بھی نہیں جانتے کہ کس کو سبب کہتے ہیں، کس کو عمل کہتے ہیں۔ پھر ہمارا جھگڑا سبب پر نہیں ہے، ہم پرورش میں سبب کی شرکت کو شرک سمجھتے ہیں۔ تم سبب کی شرکت کو سنت کہہ کے یہ بھی کہتے ہو کہ اس کا یقین شرک ہے۔ بس تم بھی نہیں پائے، بھاگ تم بھی نہیں پائے، پہلے سنت کا پھر شرک کہہ دیا۔ سنت کا یقین شرک کہاں ہو سکتا ہے؟ پیترا تو بہت مارا مگر ہنسے رہے، آخر میں آ کے تم بھی کہہ گئے شرک ہے۔ یقین کرنا، ہاں تجارت کرنا سنت ہے، یقین کرنا، تجارت کرنا اللہ کا حکم ہے، تو یقین کرنا شرک ہے، بھاگ نہیں پائے۔ کیونکہ تم جانتے تھے جس کو قرآن سمجھ میں آ گیا ہے وہ ہمیں جھوٹا ثابت کر دے گا، اس لیے آخر میں تم نے بھی صرف پہنچ دیا لا کے۔ لیکن ذرا سے یہ سمجھتے، ذرا سے یہ دماغ لگاتے، جس چیز کو ہم اللہ کا حکم کہہ رہے ہیں، نبی کی سنت کہہ رہے ہیں، اس کا یقین صرف کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کی سنت کہیں اور اس کے یقین کو صرف کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یقین کس پر کیا جائے؟ جب نبی اللہ کا حکم بھی یقین کرنا صرف ہو جائے گا، نبی کی سنت بھی صرف ہو جائے گی، تو یقین کس پر کیا جائے گا؟ یقین کرنے کے لیے کوئی چیز اور لائی جائے گی، حکومتوں کی بنائی چیزوں پر یقین کیا جائے گا کہ نہیں؟ تم گمراہ کرتے رہے لیکن بچ نہیں پائے، آخر میں کہہ گئے نہیں۔ پرورش میں کسی سبب کا استعمال نہ کرو، پرورش کو عمل کے راستے سے لو، نماز کے راستے سے۔
जाना किसी सबब में शिरक नहीं है। जा किस लिए रहो ये देख लेना बस। मसला यहाँ पता है। कहते हैं यकीन न करो, तो यकीन नहीं है और 50,000 डॉक्टर को ऐसे दिए दे रहे हो बगैर यकीन किए। 1 लाख रुपए बगैर यकीन किए दे रहे हो। 10-10 लाख लोग दे रहे हैं, 10-10 लाख, 50-50 लाख बगैर यकीन के हैं। यकीन तुम्हें सत्य पर नहीं है, इसलिए 5 लाख और 50,000 और 50 लाख तुम्हें अस्पताल में देना आसान है, और सदके में 5,000 में तुम्हारी नानी मर जाती है। यकीन सदके में नहीं है। जहाँ यकीन होता है माल वहीं खर्च करता है। कहाँ यकीन नहीं तो बोल लो। तो यकीन ना करो, यकीन नहीं है तो तुम 5 लाख खर्च कैसे कर रहे हो? और सदके पर यकीन तुम्हें नहीं है, इसलिए 500 रुपये महंगे पड़ रहे हैं, 5,000 महंगे पड़ रहे हैं सदके में, और 50,000 डॉक्टर आप खुशी से दे रहे हो। यकीन किस पर है? ना जुबानी कहने से काम चलेगा। अभी अल्लाह की तरफ से कोई हाल आवे तो 50,000 डॉक्टर के यहाँ देंगे, और सदके में 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये। हाँ, लड़के की जिंदगी से नाउम्मीद हो जाएंगे तो एक बकरा कटा देंगे 5-7 हज़ार का, 10 हज़ार का। उसमें भी कहते हैं हाफिज जी बकरा 100 रुपये मिल जाएगा, थोड़ा हल्का देखिएगा। लड़का सहारा में भर्ती है, तुमने अस्पताल में हल्का नहीं देखा? लड़का अपोलो में भर्ती है, जहाँ 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये रोज खर्चा कर रहे हो। और जब सदके की बात आई, किसी ने समझा दिया सदका भी कर दो, तो बकरा 5,000 का ढूंढ रहे हो। कह रहे हो यकीन न करो। यकीन नहीं तो किधर यकीन नहीं? यकीन यहाँ होना चाहिए सदके में। तुम यकीन डॉक्टर से बनाए बैठे हो। यकीन नमाज में होना चाहिए, यकीन सूरह फातिहा में होना चाहिए, यकीन शहद में होना चाहिए। वहाँ तो है नहीं, वहाँ बनाया नहीं, तो ठोकरें तो दुनिया की खानी ही पड़ेगी। इसलिए कुरान को अल्लाह से समझो। कुरान को किससे समझो? अल्लाह से। अल्लाह समझाएंगे, मेहनत तो करो। और मेहनत शुरू नहीं किया, आप लोग पूछते हैं कि कैसे समझेंगे? क्या मेहनत की है? कुछ 6 महीने मेहनत करके, 3 महीने मेहनत करके ये सवाल करते कि हमसे एक साहब ने, पढ़े लिखे थे, हमारी एक बात का हवाला मांगा, इसका हवाला आप हमें दे दें। तो हमने कहा बिल्कुल दे देंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं देंगे। आपने इसको कहीं देखा? कि हम क्यों देखें, बात आपने कही, आप हवाला दीजिए। हमने कहा ऐसे नहीं, आप बताइए आपने कहाँ कहाँ देखा, आपको नहीं मिला, फिर हम दे देंगे। नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई। हमने कहा कि ये बात तब हम बतला देते कि कोई आम आदमी होता है, तुम तो ठेकेदार हो दीन के ना, तो पहले तुम अपनी ठेकेदारी का सबूत दो कि हमने 10 किताबें देखी या 10 दिन से देख रहे हैं। तो हम बता दें, हम फ्री में ऐसे बता दें, बस तुम मुँह से करके निकल जाओगे या उसकी काट लाओगे। तो हम इतने सस्ते नहीं हैं जितने सस्ते तुम हमें समझ रहे हो। हमने कहा आपको नहीं देंगे, कोई आम आदमी पूछता तो बता दें। आप बताओ आप क्या मेहनत करके आए? तो अभी कुरान खोला भी नहीं, पूछने पहले आ जाते हैं। फिर हम पढ़े नहीं हैं तो कुरान कैसे समझेंगे? तो जाओ कुरान खोल के रो अल्लाह से,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे अल्लाह को समझा था? कुरान तो अल्लाह ने नाजिल कर दिया। इब्राहिम ने अल्लाह को पहचान लिया, अल्लाह उनके सामने नाजिल हो गए। देखा था अल्लाह को, तलाश किया, अल्लाह उनको पहचाना नहीं पहचाना, ऐसा पहचाना कि जिब्रील को ठुकरा दिया, माँ बाप को ठुकरा दिया, हुकूमत को ठुकरा दिया, वतन को ठुकरा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ढूंढ सकते हैं, हम और आप अल्लाह ने नाजिल कर दिया, हम उसका कलाम नहीं समझ सकते। जब अल्लाह का कलाम नहीं समझ सकते तो अल्लाह को क्या समझोगे? अल्लाह का कलाम नहीं समझ सकते, अल्लाह को कैसे समझोगे? ये तो बचपन का रटा रटाया कि हम अल्लाह को मानते हैं, धोखे में मर गए तो मग़फ़िरत नहीं होगी। हाँ, अगर इस धोखे में मर गए, इस जानने में कि हम अल्लाह को जानते हैं, तो खुदा की कसम आलम बरज़ख में कोई सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अनु रब को दुनिया में वो अपनी कुदरत से करता है, खुदा की कसम ये नजर आ जाएगा अगर हमने मेहनत करके हिदायत को नूर को हासिल कर लिया। इसलिए औलिया के वाक़यात और सहाबा के वाक़यात, अंबिया के वाक़यात उठाकर देखोगे कि ऐन हाजत के वक्त वो आई हुई मदद को, जाहिर से आई हुई मदद को ठुकरा देते थे। यूं ठुकरा देते थे, ऐसे ठुकरा देते थे क्योंकि उनको गैब से रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा होता था। अगल बगल वालों को नजर ये आता था कि इतनी परेशानी और अल्लाह ही ने भेजा था, बगैर सवाल के आया था, तो गप से ले लेना चाहिए था। तो गप से अगर ले लेते तो वो अल्लाह की तरफ से जो नाजिल हो रहा था वो रुक जाता। अब बैठने वालों को तो ये नजर आ रहा आने वाला, और जो मेहनत कर रहा उसको खुलने वाला नजर आ रहा। उसको कौन सा नजर आ रहा? हाँ, ऊपर से जो आने वाला है वो नजर आ रहा। मौलाना यूसुफ साहब का वो वाक़या लिखा हुआ किताब में कि मकरूज भी हो गए, पास में भी कुछ नहीं है, फाका भी हो रहा है, जिसका कर्जा है वो भी तकाजा कर रहा है, मांग रहा है, और चौधरी साहब पैसा भी लेके आ गए। चौधरी साहब माल भी लेके आ गए। हालांकि वह खुद नहीं आए थे, एक अल्लाह वाले ने ही उनको भेजा था कि जाओ कहाँ माल खर्च करते हो, पब्लिक वालों पर खर्च करो जाते। बोले क्या है हजरत ये ले लीजिए और जो कर्जा हो वो बता दीजिए, हम अदा कर देंगे, तो वापस कर देंगे। बैठने वालों को तो नजर आ रहा था कि ऐसे हालात हैं, बनिया पैसे मांग रहा, पास में कुछ है नहीं, कपड़े फटे हुए हैं, परेशान हाल हैं, लेकिन बगैर सवाल क्या आया था, नहीं लेना चाहिए था। हजरत ने ना ही कर दिया। क्यों ना ही किया? मेहनत की थी अपने ऊपर। ये वहां से नहीं आया है जहां से वो लेने की मेहनत कर रहे हैं, ये वहां से आया है जो उस रास्ते को बंद करने वाला। उस दिन ले लेते अगर उस चौधरी से, उस सेठ से पैसा, तो वो रास्ता जो मेहनत करके खुलवा रहे थे वो बंद हो जाता। फिर रसीदें छाप के तो फरा घूम रहे होते, ये चंदा दे दो। पहले खानकाहों में मदरसे चलते थे, अल्लाह वाले कहीं जंगलात में, कहीं मस्जिदों में बैठ के मदरसा चलाते थे।
वहाँ रसीदें नहीं थी, वहाँ चंदे नहीं होते थे, वहाँ पहले ही दिन से अल्लाह से लेना सिखाया जाता। कोई निज़ाम नहीं खाने का, कोई निज़ाम नहीं पीने का, कोई निज़ाम नहीं रहने का। अल्लाह को समझने आए हो ना। अब मदरसों में अल्लाह को समझने नहीं आया जाता है, अब किताब को समझने की पढ़ाई होती है, अब अल्लाह को समझने की होती है। अल्लाह को समझने के लिए धूप की चक्की में, सर्दी की चक्की में, गर्मी की चक्की में और हाजत की चक्की में, परेशानी और बीमारी की चक्की में न रहने का साया है, न पढ़ने की रोशनी है, कुछ नहीं, सारी चक्कियों में पीसते थे। उनके असातिज़ा उस चक्की में पीसते थे अपने तलबा को। और कोई एक दूसरे से शिकायत नहीं करते थे कि खाना नहीं मिला, कि उसमें पिस पिस के जब अल्लाह की तरफ से कुदरत जाहिर होती थी कि खाने की और मेहमान नवाजी की, तो फिर रब समझ में आता था। अब 15 साल पढ़ के रब समझ में नहीं आता है, बाकी सब समझ में आ जाता है, क्योंकि रब समझने की कौन सी पढ़ाई पढ़े हो। रब को समझाने की एक किताब नहीं है, वो कुरान है। उसको भी तो तालीमी ज़माने में पीछे रखा गया है, वो भर भर पढ़ाई जाती है और बहसें कराई जाती हैं किसके ऊपर, हदीस के ऊपर, मसाइल के ऊपर, पूरी पूरी रात बहस चलेगी। और कुरान जो असल थी उसके ऊपर कोई बहस नहीं। छोटा मदरसा हो, बड़ा हो, हिंदुस्तान में हो, बैरून में, कहीं भी कुरान पीछे चलेगी। मसले मसाइल पे पूरी पूरी रात बहसें चलेगी। जब सच्चाई को सामने लाओ तो फिर कुफ्र का फतवा, काय का फतवा, कुफ्र का। उलमा की तौहीन करते हैं ये। उलमा की तौहीन करने वाला कौन है? हाँ, इसमें कौल गिनाएंगे जिनको अपना माबूद बनाया, हम पे कौल गिनाएंगे, फला कौल के हिसाब से काफिर हो, उनके हिसाब से मुशरिक हो गए। ये क्यों? इस मौजू को छेड़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, फिर देखेंगे इंशाअल्लाह। तो रब को समझने के लिए वो कुरान है, रब को समझने के लिए कुरान है, रब को समझने की अब तालीम दी है। अब सबको समझने के लिए सब कुछ समझ गए, रब को कहाँ समझा। इसलिए सब पे तुम रब के सामने झगड़ा करते हो। हम रब से होना कहते हैं, तुम सबसे होना कहते हो, ये झगड़ा है हमारा। तो तुम सबको पढ़ के आए हो, हमने रबी को पढ़ा है, हमने सबको पढ़ा भी है। हम जो कहेंगे रब से होना कहेंगे, तुम कहोगे सबसे हो रहा है। तुम रब के साथ सबको शामिल करते हो, हम क्या रब के साथ किसी को शामिल नहीं करते हैं। झगड़ा यही तो है। इसमें तुम कुफ्र को, काफिर को, मुशरिक को, कौन सा तुम हमारे ठेकेदार हो? या तो आओ लिखा पढ़ी करो कि तुम चलोगे हमारे साथ, हमारे आलम बरज़ख में हमारे सवालों का जवाब दोगे। कोई देर नहीं चलेगा। सबको पढ़ाए, सबको शामिल कर रहे हो। हमने सबको नहीं पढ़ाया। पहले मदारिस में चंदा नहीं होता था, जब चंदा नहीं होता था तो वहाँ रब से होना समझाया जाता था, वो खुद ही समझ में आ जाता था। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह 7 साल की उम्र में जिस दिन उनकी वालिदा ने उनको भेजा मकतब में, लौट के आए तो कहा अम्मा खाना, तो कहा कहाँ खाना, कहाँ, क्यों?
आज तो हम पढ़ के आए हैं, आज तो अच्छा खाना मिलना चाहिए। आज हमारे घरों में क्या है, बच्चा पढ़ के आ रहा होगा, अम्मा खाना सजाए बैठी, वो खा रहा होगा ना। ये प्यार नहीं है बच्चों के साथ। वहां मदरसे से आए, अम्मा क्या बतला रही, जिस रब का नाम लिए हो खाना उससे मांगो। 4 घंटे जिस रब का नाम लेके आए हो खाना वो खिलाएगा, अम्मा नहीं खिलाती है, वो खिलाता उससे मांगो। फिर अम्मा वो कैसे देगा, तो मुसल्ला बिछाओ, मांगो उससे। और देखो रब समझाया जा रहा है। वो 7 साल का बच्चा मसल्ले पर मांग रहा है खाना, और वालिदा ने खाना बना के रख दिया। अब वो उठा का ढूंढो मिलेगा कहीं, तलाश किया, मिल गया, बहुत खुश हुआ। अब उसका जहन बन रहा है कि अल्लाह नमाज पर खाना देते हैं। अल्लाह ने इम्तिहान डाला, मैयत में चली गई, भूल गई खाना रखना, टाइम नहीं मिला वहां से आने का, और बच्चे का आने का टाइम हो गया। माँ वहां तड़प उठी, अल्लाह से कहे, ए अल्लाह इज्जत बचा ले, हम भी झूठे साबित हो जाएंगे, और तेरी तरफ निस्बत करते थे, तुझे भी झूठा समझे। और इधर आए, वही अमल, फिर खाना तलाश किया, खाना मिल गया, रब से लेना सूख गए, रब से लेना सीख गए। वालिदा ने रब से लेना सिखा दिया। ऐसा नहीं सीखा कि बंद हो जाए, सारी जिंदगी रोटी खिलाते रहे मेहमानों को, मुसल्ले के नीचे से रोटी खिला रहे हैं, आप खिला रहे। उनके लोगों ने दिल्ली में आज भी बाकी रखा है इस निजाम को, आने वाले मेहमानों को रोटी पीली खिलाते हैं। तो रब से लेना सीखो, रब से लेना क्या सीखना है। अभी चंद दिन पहले किताब का मुताला कर रहे थे, हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, उन्होंने मदरसा भी है, उस जमाने में जैसा रहा हो, छप्पर में रहा हो, पेड़ के नीचे रहा हो, तो बिल्डिंग है माशाल्लाह, हम देख के आए। तो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मुंशी ने बताया कि मतबख में न लकड़ी है, न तेल है, न राशन है, कोई नज्म खाने का तलबा के लिए नहीं है। तो खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। सुबह फजर के बाद वहाँ जहाँ पे उन्होंने अपनी खानकाह बनाई है, बगल में दरिया है। अब तो बांधवान बंधा है, तो जमाने में तो बांधवान नहीं रहा होगा, दरिया वहीं से गुजरा है, उसी के किनारे है। तो तलबा है, ज़रूरियात अपनी वहीं पारी होते होंगे। तलबा है, चलिए हजरत वो दरिया में लकड़ी बहती हुई आ रही है, कहा निकालो। लड़कों ने वो जितने भी लड़के रहे हों वो लकड़ियाँ निकालनी शुरू की, तो बहुत सारी लकड़ी जमा हो गई। बताया कि अब जगह खत्म हो गई लकड़ी रखने की, कई महीने की लकड़ी हो गई। कहना बंद करो। इधर तलबा ने निकालना बंद किया, उधर लकड़ी आना बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद वो डाकिया गया 500 रुपये उस जमाने में लेकर, हजरत किसी ने 500 रुपये भेजे हैं। तो कहा भाई किसी ने भेजे हैं, कौन है, हम तो इसको जानते नहीं हैं, आपको गलतफहमी हुई होगी, आप इसको ले जाओ, ये हमारे नहीं है, हमको कौन 500 रुपये जंगल में भेजेगा।
تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ ہی کا نام ہے اور آپ کا پتہ آپ ہی کو لینا پڑے گا. بہت اصرار کیا، بہت سمجھایا، پتہ تو نہیں چلا کس نے بھیجے ہیں. منشی جی کو بلایا، کہا دیکھو اللہ نے نظم کر دیا ہے، لے جاؤ جو سامان ہو اس سے خرید کر لے آؤ. اس زمانے میں 500 روپئے بہت ہوتے ہوں گے. تو طلبا کو اللہ سے لینا سمجھایا جاتا ہے. آج اللہ سے لینے کا دروازہ بند ہو گیا، سب سے لیا جا رہا ہے. اس لیے مسجد بنوانے کی رسید الگ، مدرسہ بنوانے کی الگ، غریبوں کی مدد کرنے کی، یتیموں کی مدد، ہر نام پر رسید ملے گی آپ کو. تو کہاں لے گئے ہم؟ امت کو کہاں لے گئے؟ یہاں لا کے کھڑا کیا ہے. آج ہم یہاں کھڑے ہو گئے. یہ تنزلی اور یہ گراوٹ ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. کہ قرآن سے رب سمجھ میں آئے گا، باقی کتابوں سے سب سمجھ میں آئے گا. سب سمجھ لیے ہو تم، مدرسہ کیسے چلانا، مسجد کیسے چلانی، اور فاؤنڈیشن کیسے چلانا، لوگوں کی شادی کیسے کرانا، سب سے پرورش کیسے لینا ہے، یہ نہیں سمجھا. اللہ اس کو سمجھا دے. اس کے لیے قرآن دیکھو، قرآن پر محنت کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھو. جو قرآن ہے اس کا عملی نمونہ وہ نبی کی زندگی ہے، وہ اہل بیت کی زندگی ہے. اس کو اللہ کے نبی نے خود فرمایا. جو چیز سمجھ میں نہ آئے پھر یہاں دیکھ لو، یہاں سے نیچے مت آنا، کیونکہ اس کے نیچے اللہ کے نبی نے کوئی حکم نہیں دیا. نبی، اہل بیت اور قرآن، اس پر اپنی زندگی کو رخ کو لاؤ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی اور سہولت، عزت اور عافیت نصیب فرمائیں، اور آخرت تو بن گئی. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.